Hello everyone, today we're gonna discuss remainders and these are the topics that we're gonna discuss. Basics of the remainder first we see, and then we're gonna discuss these three theorems: Chinese remainder theorem, Euler remainder theorem, and Wilson theorem. If you understand these theorem and if you are able to apply these theorem, so using these three theorems only, you can solve any question of the remainders. It doesn't matter what is the difficulty level of the question. It's very important, and you don't need anything else. You don't need any other theorem to solve the question of the remainders. So let's start. So this is just written the like basic definition of the remainders. So let me just explain all these points here. You can read this point later on. Let me just explain it here. So first, basic division thing. I hope everyone know, if you divide a number, like what is the process. So suppose we are dividing here 7 by 3. We are dividing 7 by 3. So 7 is called the dividend. 7 is called the dividend and 3 is called the divisor. And this is called the quotient. This is called the remainder. Very basic thing. This you might have learned during your initial phase of learning. So I hope everyone know the relation between this thing. So let's see what is the relation. So relation is basically dividend equal to quotient into divisor plus remainder. So in this particular example, dividend is 7, quotient is 2, divisor is 3, and remainder is 1. Remember this simple equation, relation between these all four different things that are here. Now second important part, if you divide like any number by a divisor, like suppose if you divide n by 7, let's take 7. So if you divide any number by 7, the possibilities of the remainders are here of 0. Like if you divide n by 7, you can get 0 as a remainder, you can get 1 as a remainder, you can get 2, 3, 4, 5 and 6. These are the only possibilities. These are the only remainders you can get if you divide any number by 7. You cannot get 8 as a remainder when you divide a number by 7. You cannot get any other number apart from these. So if you divide any number like let's say by 3, you can get remainders 0, 1 and 2 only. You cannot get remainders 3, 4 or any other number. Is it clear? Is it clear? Simple thing है. Like कोई भी लो, अगर let's take 4 है ना, if you divide any number by 4, you can get remainders 0, 1, 2, 3 only. You cannot get anything else as the remainder. And remember this point also, that remainders are always, ये यहाँ पर लिखा होगा तुम्हारा, remainders are always whole numbers. Remainders are always a whole number. Remainder तुम्हारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होता है. Remainders are not negative. Remainders cannot be negative. Remember this point. हो सकता है लाइक कुछ ऑप्शंस तुम्हें बना के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर नेगेटिव रिमाइंडर वगैरह हो, या फिर तुमसे लाइक इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कैन रिमाइंडर्स बी नेगेटिव, तो यू हैव टू रिप्लाई दैट रिमाइंडर कैन नॉट बी अ नेगेटिव. वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी तुम्हें आगे चीजें, तो और क्लियरिटी आएगी. ठीक है, दिस इज फाइन, ये समझ में आ गया. नाउ लेट्स डिस्कस नेगेटिव रिमाइंडर. अभी मैंने तुम्हें बोला दैट रिमाइंडर्स कैन नॉट बी नेगेटिव एंड वी वांट टू डिस्कस नेगेटिव रिमाइंडर. ठीक है, तो बेसिकली है क्या, जैसे मैंने तुम्हें लाइक कंपोजिट नंबर्स बताए थे ना, प्रॉपर और लाइक इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर, तो ऐसा कुछ होता नहीं है. देयर इज नो सच थिंग, जस्ट वी हैव मेड अप द टर्म्स फॉर अवर कन्वीनियंट. सिमिलरली देयर इज नो सच थिंग नेगेटिव रिमाइंडर. नेगेटिव रिमाइंडर इज नॉट पॉसिबल. दिस इज जस्ट फॉर अवर कैलकुलेशंस, है ना. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि होता क्या है कि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं इसको बहुत बार यूज करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर को, तो हमारी हैबिट हो जाती है, हमें लगता है कि नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है. तो हमसे कभी कहीं पर अचानक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो हमें माइंड में रहता है कि यार ये तो चीज रहती है ना, नेगेटिव रिमाइंडर होता है, बट देयर इज नो सच थिंग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि नेगेटिव रिमाइंडर होता है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट रिमाइंडर कैन नॉट बी अ नेगेटिव. ठीक है. So but for our convenient, let's understand what is the negative remainder. So if you divide any number, let's say if you divide 7 by 3, you divide 7 by 3, you're gonna get remainder as 1, and this is the positive remainder. अब पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है, नेगेटिव रिमाइंडर देखो क्या होता है. नेगेटिव रिमाइंडर लाइक डिवाइजर माइनस पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल टू 2.
दैट इज द नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट अगर करना चाहो यू कैन डू दिस थिंग, बट लेट मी एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब तुम्हें करना क्या है कि लाइक 3 2 से 6 होते हैं ना, उसके एक स्टेप आगे तुम्हें देखना है कि 3 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है। 3 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 3 का नेक्स्ट मल्टीपल 9 है, तो इसमें कितना ऐड करोगे कि नेक्स्ट मल्टीपल बन जाए, दैट इज योर नेगेटिव रिमाइंडर। समझ में आया? एक और चीज लेते हैं, 70 सपोज। ठीक है, सो अब तो निगेटिव रिमाइंडर देखो क्या होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 6 2 से 12 5 है ना, 5 है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो अगर यहाँ से निकालोगे 6 - 5 1 आ जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। बट अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझो इसको, तो 6 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 18। 6 का नेक्स्ट मल्टीपल है 18, तो इसमें कितना ऐड करोगे 18 बन जाएगा 1, तो 1 इज योर नेगेटिव रिमाइंडर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, but there is, remember always, this is just for our convenient to make our calculation easier, but there is no such term negative remainder. One more thing, remainders are multiplicative. One more concept, remainders are multiplicative, मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, ये remainders are multiplicative। ठीक है, तो लाइक सपोज तुम किसी नंबर को लाइक लेट्स से लाइक 24 को 7 से डिवाइड कर रहे हो। 24, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आए। तुम्हें क्या करना है, व्हेन यू आर लाइक अटेंडिंग दिस क्लास, व्हेन यू आर वॉचिंग इट, ठीक है, तो अगर जैसे पहले एक बार तुमने ऐसे देख लिया है ना, यूजिंग पेन एंड पेपर अपने नोट्स वगैरह बना लिए, देन अगर दोबारा इसे देखो, देन टेक दिस डिफरेंट नंबर। मैं 24 के साथ कर रहा हूँ तो तुम कुछ और नंबर लेके एक्सपेरिमेंट करो। दिस इज द थिंग दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग इन अ बेटर वे। कैट जैसे एग्जाम में तभी क्लियर कर पाओगे अगर तुम सिर्फ रट लोगे। जैसे यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये चीज़ होती है, अगर तुमने सिर्फ ये रट लिया कि नेगेटिव रिमाइंडर ऐसे निकालते हैं, देन यू विल नॉट एबल टू सॉल्व न्यू क्वेश्चन। टू सॉल्व न्यू क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो इट्स इंपॉर्टेंट, लाइक जो भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, देन ट्राई टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स, है ना, अपने कुछ नंबर्स लेके करो। जैसे मैंने ये अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, तुमने समझने के बाद नोटबुक में तुमने कोई अपना एग्जाम्पल लेके खुद से लाइक है ना ऐसे करके लिख लिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन योर एंड। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। So 24 is divided by 7. So you can like get, here will be remainder 3 ना, 7 3 is 21, तो remainder 3 हो जाएगा। Other thing you can do, you can break 8 into 3, you can break 8 into 3 और you can break 6 into 4, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके लिखा जा सकता है, this is the same thing। या फिर you can break like 4 into 2 into 3, anyway you can break, these are the same thing। ये सारे 24/7 ही लिखा हुआ है, दिस ऑल थिंग्स आर रिटन 24/7। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। तो अब अगर तुम इंडिविजुअल देखो, इंडिविजुअल इसका कितना रिमाइंडर आएगा, 7 4 आएगा इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, चलो एक और चीज़ इसमें करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करते हैं। इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -3 आएगा, -3। ठीक है, जब यहाँ पर लिखोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर विल राइट विद द साइन दैट इज -3। एंड तो अब देखो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18 -18 7 2 जा 14 एंड 14 का 4 है, -4 साइन रख, जब साइन को रखना है। ठीक है, अब अगर रिमाइंडर -4 है ना, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा 3, 4 में जितना ऐड करके 3 आएगा, दैट इज ऑल्सो वे। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू से डेट मल्टीप्लीकेशन में वर्क करता है रिमाइंडर, मल्टीप्लिकेटिव इज एप्लीकेबल ऑन द रिमाइंडर्स। अब जैसे ये देखो, इसका रिमाइंडर कितना है, 1 है, इसका कितना है, 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3/7। अब इसका रिमाइंडर देखो -1 है, इसका रिमाइंडर -1 है, इसका रिमाइंडर -3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो +3 हो जाएगा, तो +3 इज द रिमाइंडर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से डेट कि रिमाइंडर तुम्हारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, you can remove the complete number, you can just write the reminders। और जैसे देखो, आप अगर ये मैंने नेगेटिव रिमाइंडर से किया, अगर इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से करूँ तो इसका रिमाइंडर 6 आएगा, है ना, एंड इसका रिमाइंडर 4 है, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है,
आई होप यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। वो बात समझ में आ गई होगी तुम्हें कि रिमाइंडर तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव, तो एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि हम इसको और कर पाए। लेट्स टेक हियर 128। 128 7 से मल्टीपल नहीं है, ठीक है। लेट्स टेक 128। 128, तो 128 को तुम ब्रेक कर सकते हो 64 इंटू 2, है ना, एंड लाइक 4 इंटू कितना, 7 से बड़ा नंबर लेते कोई भी, 8 इंटू 8, है ना, 64 इंटू 2, ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे भी ब्रेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 7 9 63, 1 आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 आ गया, इसका रिमाइंडर 2 है, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर हो गया 2/7, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो रिमाइंडर 1 है, 1 है, 1 1 इंटू 2, रिमाइंडर कितना हो गया 2, 2 ही रिमाइंडर होता है। यहाँ पर चेक कर लो कितना रिमाइंडर होता है, 7 1 7 एंड 58, 7 8 56, 2 इज द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। किसी भी नंबर को, बड़े नंबर को ब्रेक करके छोटे का रिमाइंडर निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, वन मोर थिंग, सेम लाइक उसको मल्टीप्लिकेशन की तरह ही ले सकते हैं। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन हो तुम्हारा 64 डिवाइडेड बाय 7, पावर कुछ बड़ा सा ऐसे दिया हुआ है, पावर कुछ ऐसे बड़ा सा दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 63 डिवाइडेड बाय 7। so what you'll do, you know this is 64 divided by 7, remainder is 1, 1 is the remainder। तो अब देखो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो अब पावर कुछ भी कर दो, है ना, तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 इंटू 1 इंटू 1, ऑलवेज रिमाइंडर 1 रहेगा। तो ये भी बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव ही हो गया ना, 64 इंटू 64 इंटू 64, इतने सारे 64 लिखे, एक 64, सब 64 का रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे फाइनल रिमाइंडर 1 आए, ठीक है। दिस वॉज द पॉइंट। नेक्स्ट थिंग, रिमाइंडर्स आर एडिशन ऑल्सो, रिमाइंडर में एडिटिव रूल भी तुम्हारा अप्लाई होता है। एडिटिव रूल का मतलब समझते हो, लेट्स से 3 है एंड लेट्स टेक 16, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस 15 + 1, तो इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 1 है, 0 + 1, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। और यू कैन राइट लाइक कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स राइट 12 + 2, है ना, 12 + 2 + 2, इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 2 है, इसका रिमाइंडर 2 है, 4, और फिर इसका रिमाइंडर 1 है। ऐसे कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी ब्रेक कर लो। लेट्स से 4 to 6 + 10, तो इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 2 है, इसका रिमाइंडर 1 है, तो सबको ऐड करके रिमाइंडर आएगा 4 3 1 रिमाइंडर है। समझ गए, मल्टीप्लाई में कैसे करोगे और एडिटिव में भी ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द वे। तो रिमाइंडर एडिटिव भी है तुम्हारा और मल्टीप्लिकेटिव भी है। दिस वॉज द बेसिक्स अबाउट रिमाइंडर। नाउ लेट्स सी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। So this I have already explained what it means. This is asking about what is the remainder when 6 factorial is divided by 13. अगर mod लगा है तो उसका मतलब ही यही है, ठीक है। So 6 factorial you know that is 720, or you know 13 5 just 65, 65 7 70 अगेन आ जाएगा, तो 5 just 65, तो 5 is the remainder, ठीक है। इसको देखते हैं, 2001 2003 2004 2005 divided by 7, what is the remainder? This question is already asking about this, ठीक है। तो देखो 7 2 14, अच्छा यहाँ पर तो हमें सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, एनीवे चेक कर देते हैं। 7 2 14 एंड 7 8 देखो फिर से करते हैं, 7 2 14, 6 बचता है, 7 8 56, 41 41 बच रहा है, 41, 7 5 35, 6 बच रहा है, 6 इज द रिमाइंडर। अब देखो मैंने, अगर मैं लिखता, मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 6 लिया, अदरवाइज मैं क्या लिखता, -1, कितना आ रहा है 41 आ रहा है ना, 41, नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 42 है, 1 है, तो -1 और या फिर 6, दो में से एक रिमाइंडर हो सकता है। तो जब भी तुम ऐसे कभी भी रिमाइंडर निकाल लोगे, तो कब तुम्हें नेगेटिव यूज करना है, कब तुम्हें पॉजिटिव यूज करना है, हमेशा तुम्हें वो नंबर यूज करना है जो छोटा हो। 6 छोटा है या -1, -1 छोटा है, तो आई विल टेक हियर -1, ठीक है।
6 भी करोगे तब भी सही आएगा, -1 करोगे तब भी सही आएगा। तो आई विल टेक नंबर जो छोटा है, -1 छोटा है, ठीक है। और निगेटिव रिमाइंडर साइन के साथ लिखोगे तभी आंसर सही आएगा, यहाँ पर 1 नहीं लिख दोगे, ठीक है। अब तुम्हें पता है अगर इससे -1 आता है, नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, लाइक यहाँ पे हर एक नंबर पे एक ऐड होता जाएगा, तो लाइक यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो +2 करोगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, है ना, 2 का गैप है। इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट नंबर है ना, अब सारे को मल्टीप्लाई कर लो, डेट इज -6/7। सो -6/7 अगर पॉजिटिव रिमाइंडर तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर ये है तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे देख लो, है ना। तो इसका रिमाइंडर -1 आएगा, -1 1 हो जाएगा, तो 1 इज द रिमाइंडर है। ये बात समझ में कैसे किया, लाइक सपोज अगर 7 अगर ऐसे नंबर लिखे हों, लाइक लेट से 8 9 10 एंड 11, तो अगर इससे 1 रिमाइंडर आएगा तो इससे 2 आएगा, इससे 3 आएगा, इससे 4 आएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही अगर इससे रिमाइंडर -1 आएगा तो इससे 1 आएगा, क्योंकि 2 का गैप है, 1 का गैप है तो 1 ऐड कर दो, 1 का गैप है तो 1 ऐड कर दो, ऐसे रिमाइंडर्स आ जाएंगे। यू डोंट नीड टू चेक फॉर एवरी नंबर को डिवाइड करके कर लो। नाउ लेट्स डू दिस वन, 64 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 7। देखो अब 7 9 जा 63 होता है, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1। अब तुम्हें बताया मैंने मल्टीप्लिकेटिव होता है तो 1 ऐसे ऐसे 13 बार लिखा है ना, इसका मतलब ये है, तो हर बार 1 है तो 1 इज द रिमाइंडर, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है ये। 33 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पर कितना है, 17, 1 जा 17, 16 पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब देखो अगर तुम्हें निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया, बट इफ यू नो द निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, तो निगेटिव रिमाइंडर हियर इज -1। बोलो -1 है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड -1 कैसे है। अगर ये -1 है और -1 की पावर एक इवन नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, तो रिमाइंडर इज 1। बट सपोज यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते, सपोज 19 होता, तो ये निगेटिव रिमाइंडर -1, और अगर -1 को 19 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट -1/17। तो निगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर देखो -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 16। तो इसकी पावर पे डिपेंड करेगा रिमाइंडर, लाइक पावर अगर इवन है तो 1 रिमाइंडर आएगा, पावर अगर ऑड है तो 16 आएगा। ओके, so now let's discuss the Chinese remainder theorem. I hope everyone understand these basic things like negative remainder कहाँ पर यूज करना है ना। अब सिंपल कुछ तुम्हें जस्ट माइंड में ये रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर कुछ नहीं, जो नंबर छोटा होगा, है ना। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर छोटा है यू विल टेक पॉजिटिव रिमाइंडर, अगर नेगेटिव रिमाइंडर छोटा है तो नेगेटिव रिमाइंडर लोगे, सिंपल ये रूल फॉलो करना है। एंड सेकेंड थिंग, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉजिटिव रिमाइंडर पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव रिमाइंडर हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रखना है, ठीक है। और एंड पे अगर जैसे ऐसे नेगेटिव आ गया, एंड पे ऐसे आ गया -1/17, या फिर लेट से -3/17 आ गया, इसका मतलब है तुम्हारा जो पॉजिटिव ऑप्शन में, अगर ऐसा सपोज ऑप्शन देखो तुम्हारे ऐसे हो, वही मैं कह रहा था, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे दिए, 14 -3 2 नन ऑफ द अबव, सपोज ये दे दिया नन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन लाइक ऐसे दे दिया, लाइक एक ऑप्शन दे दिया बोथ, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, समझ रहे हो, बोथ 1 एंड 2 ऐसे करके सपोज ऑप्शन लोग आगे में लिख लेता हूँ। सपोज ये तुम्हारा सिचुएशन आई और तुम्हें ऐसे ऑप्शन दिए 1 2 3 4, फर्स्ट ऑप्शन इज 14, सेकेंड इज दिस, एंड बोथ 1 एंड 2 एंड नन ऑफ द अबव, दीज आर द ऑप्शंस। सो वही मैंने बोला, तुम नेगेटिव रिमाइंडर इतना प्रैक्टिस में यूज होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो दोनों सही है, 14 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है ना। अगर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। अब तुम्हें लगेगा यार 14 भी है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बट दिस इज नॉट राइट। रिमाइंडर जो होते हैं तुम्हारे ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो 14 इज द ओनली राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर ऐसे आएगा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर दूसरा होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर विल बी 17 - 3 दैट इज 14, ठीक है। जब भी लास्ट में, तो इसीलिए साइन रखना जरूरी है, सपोज तुमने बीच में साइन गड़बड़ कर दिया है ना, तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। कि टेक केयर ऑफ दिस थिंग।
Now let's see Chinese remainder theorem. So I have here explained this with the example that we'll be also seeing. Important thing is that there are few questions that can be solved only using Chinese remainder theorem. Means like if you use any other method, that's going to be very, very complicated. Chinese remainder theorem is only like there are way to solve those questions. I will show those questions. I think like I have taken like this question itself. Like suppose any question is given, like suppose like for that initial numbers are not given. Suppose that, and like you need to find the remainder when this number is divided by 40. You don't know these numbers. So this question can be solved only with the help of Chinese remainder theorem. Okay, so that's why this becomes very important for few questions. Let's understand what this theorem is. Let me explain it with the given like example itself. 23197 divided by 24. So first thing in step is to break the divisor into co-prime factors. So that is 8 and 3. 24 के को प्राइम फैक्टर्स अगर देखोगे इसके तो 8 और 3 है, 6 और 4 में नहीं करेंगे, 124 ये है बट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि 24 फिर इटसेल्फ आ जाएगा ना. ये मैंने डिवाइजर में भी बात की, डिविजिबिलिटी में भी बात की थी. ठीक है. नाउ you have to find the remainder when this number is divided by 8. Now the divisibility rules, I hope everyone knows for the 8. So last 3 digit we'll just check. 8 to the 16 and that is 3. So 8 4 the 32, 5 is the remainder. So when you divide this number by 8, you're gonna get 5 as a remainder. Remainder is 5. So now just write it here, that basic equation divide, let's say dividend, let's say this is x है ना, x इसको ले लेते हैं, equal to 8 is your divisor, quotient let's take k 1 and remainder is 5. Now second thing, find the remainder when this is divided by 3. So you also know the divisibility rule of 3 that you can utilize, that is 7, so that is 1. So when you divide this number, so this x number is same, these two equations like are same, equals to 3a2 plus 1. This is fine. This equation, this is fine. Like let me just remove this part. So this is the basic equation that we have written, dividend equal to like divisor into quotient plus remainder equation. X equal to, that is 8k1 plus 5 equal to 3k2 plus 1. This is the equation. Now you need to solve, this is called the, यहाँ पर देखो तुम्हारी x को हटा देते हैं, x को r लिख लेते हैं जो एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ. ये वाला x था है ना, ये नंबर x था, मैं बट इसको अब रिमाइंडर बोल रहा हूँ. अभी देखो कैसे. अब ये इक्वेशन है, 1 इक्वेशन है, 2 अननोन है, 1 इक्वेशन है और 2 अननोन है. दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड द स्पेशल इक्वेशन. अलजेब्रा में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको फास्टर कैसे सॉल्व करें एंड ऑल द थिंग, बट अभी सिर्फ इस पे फोकस करते हैं. लाइक कि कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्व करना इनको हम अलजेब्रा में सीख लेंगे. ठीक है. तो अभी देर आर लाइक मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है ना, तो यहाँ पर तुम्हें एक आंसर नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट वन आंसर, यू गेट मैनी सॉल्यूशंस. तो जो स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन होगा, जो स्मॉलेस्ट आर की वैल्यू होगी, दैट विल बी योर रिमाइंडर. ठीक है. So now find the minimum number when the like this thing is the written here, this statement is remainder, this statement is written here. Basically now you need to find the like minimum value of this thing. like k1 की वैल्यू पुट करो तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू पुट करो तो मिनिमम वैल्यू आ जाए. तो बेसिकली मैं फिर से स्टेप्स तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट ब्रेक द डिवाइजर इनटू को प्राइम फैक्टर्स. आफ्टर दैट टेक इंडिविजुअल फैक्टर एंड फाइंड द रिमाइंडर्स, then write in this form. And उसके बाद you have to find, for this statement will be find the number, like find the minimum number which when divided by 8 gives 5 as a remainder and divided by 3 gives 1 as a remainder. That will be your remainder when this number is divided by 24. I hope समझ में आए. एक बार स्टेटमेंट ये पढ़ लोगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी. तो ऐसा नंबर सोचना स्टार्ट करो. तो लाइक अभी जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगा. ठीक है. बट अभी के लिए जस्ट हम लाइक जस्ट कौन सी टेक्निक बोलते हैं, जस्ट वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं. ठीक है.
तो जो बड़ा नंबर हो जिसमें मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो, 8 है जैसे, है ना, यहाँ पर 3 और इसमें 8 बड़ा है, तो जो जिसमें मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो वो नंबर लो, 8k + 1 5, ठीक है। और इसमें k1 की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, 0 से 1 से पुट करना स्टार्ट कर दो, 1 से पुट करोगे तो 13 आएगा। अब देखो जरा, क्या 13 इस पे इंटीजर वैल्यू आ रही है, इक्वल टू 13 लिखो एंड 1 इंटीजर वैल्यू आ रही है। या फिर ऐसे देखो कि लाइक क्या 13 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, आ रहा है, सो 13 इज द रिमाइंडर, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं तब और क्लियरिटी आएगी। 7183249 डिवाइडेड बाय 72। अगर तुम्हें समझ में आ गया है देन पॉज द वीडियो, है ना, फाइंड योर सॉल्यूशन देन वॉच द सॉल्यूशन, फाइंड योर आंसर देन वॉच द सॉल्यूशन। अदरवाइज जिसको समझ में नहीं आया जस्ट वॉच दिस अगेन, वॉच दिस ऑल्सो। तो क्या करना, फर्स्ट स्टेप था ब्रेक द नंबर इनटू को प्राइम फैक्टर 72 के लिए, दैट इज 8 and 9, 8 and 9। Now find the remainder when this number is divided by 8. For that we only need last 3 digit. For that we only need last 3 digit. 8 6 are 48 and 17 1. So if you divide this number by 8, you're gonna get 1 as a remainder. And next thing is the 9. So 9 के लिए क्या है, add all these number. अगेन ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। 7 7 14, 14 divided by 9, that is 5. So when you divide it by 9, you get 5 as a remainder. Now you need to find like smallest value of r such that these conditions are satisfied, that will be your remainder, ठीक है। अब अगर मैं 8k1, अब इसमें से कौन सा नंबर लेना है, ये लो, कोई भी ले सकते हो, यू कैन टेक ये भी ले सकते हो, बट इसमें क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी, इसमें कम वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। दैट इज द रीजन, यू कैन, इट्स नॉट रूल, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि लाइक बड़े वाले मल्टीपल में लेना, यू कैन टेक स्मॉलर वन ऑल्सो, फॉर द स्मॉलर वन यू हैव टू टेक मोर नंबर्स एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड अ नंबर, एक नंबर तुम्हें फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको 8 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर आए और 9 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आए। यू हैव टू फाइंड अ सच स्मॉलेस्ट नंबर, व्हेन यू डिवाइड दैट नंबर बाय 8 you get 1 as a remainder, and when you divide that number by 9 you get 5 as a remainder, ठीक है। दिस इज द टास्क। पहला स्टेप, नंबर को को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो, उसके बाद इंडिविजुअल से रिमाइंडर फाइंड कर लो, देन यू नीड टू फाइंड द सच स्मॉलेस्ट नंबर, व्हेन यू गेट डिवाइड दैट बाय 8 you get 1 as a remainder, डिवाइड बाय 9 you get 5 as a remainder। अब ये कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें से जो बड़ा मल्टीप्लिकेशन वो नंबर ले लो, इसका हम प्रॉपर सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे स्पेशल इक्वेशन का, डेट वी डू इन द अलजेब्रा, बट अभी के लिए सिर्फ ऐसे ही काम चल जाएगा, ठीक है। k2 को 1 पुट करो पहले, तो आया कितना 14, तो 14 को 8 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर आता है, नहीं आता है। 2 पुट करो, 9 2 जा 18, 18 5 जा 18 5 23, 23 को 8 से करो, 1 रिमाइंडर आता है, नहीं आता है। तो नेक्स्ट नंबर 9 थी जा 27, 27 5 32 तो 8 का मल्टीपल नहीं आता है, तो कितना हमने 2 ट्राई कर लिया, 3 ट्राई कर लिया, 4 ट्राई करते हैं, 36 5 41, 41 को करो अगर तो 1 रिमाइंडर आता है, 8 से करो 1 रिमाइंडर आता है, तो 46 इज द नंबर दैट इज सेटिस्फाइंग लाइक स्मॉलेस्ट नंबर। 41 is the smallest number, when you divide it by 8 you get 1 as the remainder, divided by 9 you get 5 as a remainder, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 41, ठीक। इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है, 41 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमें वन ऑफ द सॉल्यूशन में मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसे देखो है, अभी एग्जाम में देखो ऐसे पूछ सकते हैं, that they can give the statement also like first 34 numbers are written like in this manner, like 1 2 next to each other, and then that number is divided by 40, find the remainder. So what you will do, or they can give you like there is a 10 digit number and last 4 digit of the number are given, या फिर last 3 digit of the number is given, find the remainder when this is divided by 40. This can be also,
So what you will do, you know that 40, first step for Chinese remainder theorem is break 40 into two co-prime, like any number of co-prime factors, that is 8 and 5. Co-prime factors are 8 and 5. Now, like, you know, for 5 we just need last digit. For 5 we just need last digit, and for 8 we just need only last 3 digit. So if you divide this number by 8, what will the remainder? 8 4 are 32 and 8 1 8 6. ये बात समझ में आ गया कि 8 के लिए सिर्फ लास्ट 3 डिजिट चाहिए, 5 के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब ही नहीं है. दिस नंबर इज नॉट एनी रूल. ठीक है. तो अगर इसको 8 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 8 इंटू K1 प्लस 6 आ रहा है. 5 से करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, दिख रहा है ऑटोमेटिक. 5 का डिजिटल रूल पता है. तो वैल्यू किस में पुट करोगे? 8 में पुट करोगे ना. 8 वाला बड़ा है, आसान रहेगा. 5 से भी आ जाएगा आंसर, बट 8 से करोगे तो आसान रहेगा. कम नंबर चेक करने पड़ेंगे, बेसिकली कम हिट एंड ट्रायल तुम्हें करने पड़ेंगे. देयर हेयर वी आर डूइंग द हिट एंड ट्रायल, है ना. बट इसको प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं, दैट वी विल लर्न व्हेन वी डू द अलजेब्रा. अलजेब्रा में स्पेशल इक्वेशन पढ़ेंगे, देयर आई विल एक्सप्लेन. तो लेट्स पुट K1 इक्वल टू 1, तो आ जाएगा 14. 14 को 5 से करोगे 4 रिमाइंडर आएगा, है ना. तो 14 इज द नंबर. 14 इज द, बेसिकली इस इक्वेशन का तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है ना, और स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन विल बी योर आंसर. तो 14 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपरली. Okay, this is an interesting question. 13 to the power 101 divided by 360. This is your homework, है ना, to solve this question using the Chinese remainder theorem. तो इसको देखो, अगर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो तो आएगा 985. Now this is your homework. You have to solve this question and थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, but you have to give it a try. ठीक है. नाउ लेट्स सी द यूलर रिमाइंडर थ्योरम. अच्छा, ये मैंने होमवर्क तुम्हें इसलिए दिया है, इस क्वेश्चन को जब तुम ट्राई करोगे तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन तुम्हें लाइक एक लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा. बट इफ यू यूज यूलर थ्योरम, दिस क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, लाइक 2-3 स्टेप में हो जाएगा. और लाइक चाइनीज रिमाइंडर से थ्योरम करोगे तो ये लेंदी क्वेश्चन है. नाउ लेट्स डिस्कस दिस थिंग. This is the like most important theorem for the remainders. Chinese remainder theorem देखो ऐसा है कि लाइक हर जगह यूज नहीं होगा, कहीं कहीं क्वेश्चंस में ही यूज होगा. बट यूलर रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूलर रिमाइंडर थ्योरम यूज होगा. दिस वी यूज टू लाइक जो क्वेश्चन दिया होता है उसको छोटा करने के लिए, है ना. जैसे इतना बड़ा नंबर दिया है, इसको छोटा करने के लिए वी यूज द Euler remainder theorem. So that's why this is very important theorem for the remainders. So let's see it here. You already know how to find the Euler number. अगर तुम्हें नहीं पता है, for that I have put the like link, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Euler number, just check from there. ठीक है, Euler number कैसे फाइंड करते हैं और Euler number क्या होता है. Here we are just talking about the Euler remainder theorem. So I am expecting you know what is Euler. So if this is there, like suppose you are dividing a to the power n by b, and this is the condition, a and b are co-prime. A and b are co-prime, and if n is the Euler of b, you know what is the Euler, how to find the Euler of b. ठीक है. so, अगर जो पावर है इसका यूलर नंबर हो जाएगा, then remainder will be always 1. Remainder will be always 1. This is the Euler remainder theorem. Now let's see the question. तो देखो 19 to the power 128 डिवाइडेड बाय 480. बस थ्योरम इतनी सी है, इसके एप्लीकेशन देखते हैं. अब देखो क्या है, और इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों को प्राइम है. कंडीशन पहली, दोनों को प्राइम हो. हम जल्दबाजी में ये चीज़ नहीं चेक करते, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज टू आर को प्राइम, अदरवाइज गलत आंसर आएगा. और 480 का तुम्हें यूलर नंबर निकालना है. तो 480 का यूलर नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें 2, 3, 5 सिर्फ इतने ही वो हैं तुम्हारे प्राइम नंबर्स. तो दिस इज द वे. नहीं पता है तो चेक कर लेना, लिंक मैंने दे दिया है यूलर वाले सेशन का. ठीक है, 16 8 जा 128. सो 480 का जो यूलर नंबर है 128 है.
तो अभी मैंने यही यूलर थ्योरम है, ये दोनों को प्राइम हो और अगर पावर इसका यूलर नंबर है देन रिमाइंडर इज 1, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इस क्वेश्चन को चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से करोगे तो एक बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन देखो, 8 टू द पावर 289 डिवाइड बाई 35, तो 35 का यूलर नंबर क्या होता है? 35 का यूलर नंबर होता है 6 इंटू 4 डेट इज 24। एंड अब देखो ऐसे करके अब 24 इसको ब्रेक कर लो, 24 इंटू कुछ कितना 24 289 अगर करोगे तो कितना आएगा 1 है। ऐसा ये हो गया, ऐसे लिख सकते हो 289 को ऐसे लिख सकते हो और 35 का यूलर नंबर कितना 24 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो ये पार्ट देखो, लाइक इसको 12 को अंदर कर लो, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और नहीं रुको एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आई होप सबको ये डिफरेंस पता होगा। दिस इज ये, है ना, ये तुम्हारा होता है 824 इंटू 12 और ये 824 12, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये 24 पे पावर है। ठीक है, और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ऐसे लिख दिया इंटू 8, इसको ऐसे लिख सकते हो। और अब तुम्हें पता है इसका रिमाइंडर 1 होगा बिकॉज दीज टू आर, मैंने अभी तुम्हें बताया था ये मल्टीप्लिकेटिव होते हैं ना, तो इसका इंडिविजुअल देखो, इसका इंडिविजुअल देखो, इसका इंडिविजुअल देखोगे तो ये तुम्हें पता है 24, इसका रिमाइंडर 1 होगा बिकॉज 24 इज द यूलर नंबर ऑफ 35 एंड दीज टू आर को प्राइम, तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया, तो 1 इंटू 8 रिमाइंडर कितना 8 हो गया। राइट, इसको देखो 35 टू द पावर 36 37 38 डिवाइडेड बाई 13, रिमाइंडर निकालना है। 13 का यूलर नंबर 12 होता है। अब पावर देखो इसके मल्टीपल दी हुई है, अब ये पावर कुछ भी दी हो इससे मतलब नहीं है, ये जो बड़ा सा नंबर होगा कोई, अगर 36 पावर कुछ भी करोगे तो डेट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 ना। 36 टू द पावर कुछ भी कर दो तुम, वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगी। सो दैट्स वाई द पावर डेट इज रिटन हियर डेट इज मल्टीपल ऑफ 12, द रिमाइंडर विल बी 1। दिस क्वेश्चन 31 टू द पावर 31 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाय 7, अब 7 का कितना होता है? 7 का यूलर नंबर होता है 6, ये दोनों को प्राइम में वी कैन अप्लाई। अब देखो अगर इस पावर को देखो, अगर इस पावर को 6 से डिवाइड करोगे, अगर 31 टू द पावर 31 अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब ये जो भी नंबर है 31 टू द पावर 31 31 टू द पावर 31 इज 6k प्लस 1 फॉर्म नंबर, इस फॉर्म का नंबर होगा ना। 31 को अगर 6 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, सो दिस इज 6k प्लस 1 फॉर्म। k से हमें वी डोंट नीड टू फाइंड व्हाट इज k, वी कैन राइट 6k प्लस 1 फॉर्म। सो दिस इज अगेन 31 6k into 31. For this you know remainder is 1 because these two are co-prime, these two are co-prime and this power is Euler number of this divisor, so that's why remainder is 1. So for this whole remainder is 1 into 31 we left with this thing. So for 31 remainder is 3, है ना, 7 for the 38 3. So here remainder is 3 for this question. I hope this thing is clear. Now let's solve this question 11 to the power 68 divided by 48. Again if you solve like अगर तुम्हें ऐसा दिखता है and you just apply the Chinese remainder theorem, this question might be a difficult one, but using the Euler theorem this is gonna be very simple. 48 का Euler number होगा 1 by 2 2 by 3 6 8 to the 16, तो 16, तो अगर ये देखो 16 का मल्टीपल 16 4 the 64 plus 2 है, so I can write like this 16
4 प्लस और नॉट प्लस 11 स्क्वायर 48। इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा बिकॉज ये दोनों को प्राइम है और 16 इसका यूलर नंबर है, तो ये रिमाइंडर 1 हो जाएगा. सो नाउ आई एम लेफ्ट विथ दिस वन. सो नाउ यू नो 121 42 कितना रिमाइंडर होगा 96 एंड 14 टू 96 ना, और 25 इज द रिमाइंडर. आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको अप्लाई करके वी कैन फाइंड द रिमाइंडर्स. नाउ लेट्स सी द विल्सन थ्योरम. सो यूलर रिमाइंडर थ्योरम इज इंपॉर्टेंट. लाइक अभी देखो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लिए जहाँ पर यूलर अप्लाई हो रहा हो, वैसे ही क्वेश्चन लिए जहाँ पर चाइनीज अप्लाई हो रहा हो, है ना. तो डेफिनेटली आई हैव टेकन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट लाइक इस पार्ट में मैं तुम्हें सारे थ्योरम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ. रिमाइंडर पार्ट 2 में विल टेक एनी क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हाउ यू गोना यूज दिस थ्योरम इन एनी क्वेश्चन. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल वैसे ही लिए हैं जहाँ पर डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है, बट किसी भी क्वेश्चन में यू कैन अप्लाई दीज थ्योरम्स. ठीक है, यू कैन अप्लाई यूलर थ्योरम, कोई भी बड़ा नंबर दिया एंड सिंप्लीफाई दैट, आफ्टर दैट यू कैन डू द क्वेश्चन. ठीक है, तो विल्सन थ्योरम देखो क्या है. विल्सन थ्योरम बेसिकली तुम्हारा लाइक फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस के लिए है ना. सपोज क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 30, ये क्वेश्चन है, ये ऑलवेज तुम्हारा दिस फॉर्म के लिए. ठीक है, तो ये 4 5 ये याद करने और कुछ नहीं है. 30 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 31, सो व्हाट विल द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी p-1 दैट इज 31 - 1 30 रिमाइंडर होगा हमेशा. तो ये चीज़ें याद कर लेनी है. देखो p-1, p इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, इसका रिमाइंडर हमेशा p-1 होगा. और ये याद रखना प्राइम नंबर के लिए है, कोई नंबर और के लिए नहीं. ठीक है, एनी प्राइम नंबर, लेट्स से 23 और ये है तुम्हारा 22 फैक्टोरियल, रिमाइंडर विल बी p-1 दैट इज 22. एंड सेकंड, फर्स्ट याद कर लो, दूसरा क्या है 1. लेट्स से 31 एंड 29 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 31, रिमाइंडर विल बी 1. अगर 2 का डिफरेंस होगा रिमाइंडर 1 होगा. अगर 3 का डिफरेंस होगा तो रिमाइंडर p-1/2 होगा. लेट्स से 23 एंड 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23, रिमाइंडर विल बी p-1/2 दैट इज 23 - 1/2, सो दैट इज 11. ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम्हें बुक में मिल जाएगा, बट ये वाला तुम्हें नहीं मिलेगा. तो ये वाला मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. p-4, लेट्स से 19 एंड 15 फैक्टोरियल, 19 एंड 15 फैक्टोरियल. एंड एक और चीज ले लेते हैं 6 7 41 एंड 41 से अगर 4 करो तो कितना 37, ये दो ले लेते हैं. अब इसका रिमाइंडर क्या होगा. ठीक है, अगर 4 का डिफरेंस है, अगर 4 का डिफरेंस है तो रिमाइंडर देखो 2 हो सकते हैं. रिमाइंडर माइट बी इक्वल टू k, रिमाइंडर तुम्हारा k हो सकता है या फिर p-k हो सकता है. ठीक है, अगर 4 का डिफरेंस है तो रिमाइंडर तुम्हारा k या फिर p-k हो सकता है, डिपेंडिंग. जो तुम्हारा ये है दिस इज, जो तुम्हारा प्राइम नंबर है वो किस फॉर्म का है. जो प्राइम नंबर है तुम्हारा, मैंने तुम्हें बताया था प्राइम नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 6k+1 और 6k-1. तो ये प्राइम नंबर देखो तुम्हारा है 6 3+1 फॉर्म का, एंड दिस इज k, दिस इज k. तो यहाँ पर रिमाइंडर तुम्हारा 3 हो जाएगा. Here you can see your prime number is of form 6-1 और k की वैल्यू यहाँ पर 7 है. तो अगर ये है तो रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा, जस्ट अ मिनट, मैंने उल्टा यहाँ पर बता दिया ना. k-1 के लिए तुम्हारा रिमाइंडर k होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा p-k. p तुम्हारा क्या है 19 और k तुम्हारा क्या है 3, तो 16 रिमाइंडर होगा. ये तुम्हारा 6k-1 फॉर्म का है, तो इसके लिए रिमाइंडर k होगा दैट इज 7. समझ में आ गया है ना. तो देखो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर p-1 फैक्टोरियल, अगर 4 का डिफरेंस होगा, प्राइम नंबर अगेन p रहेगा, तो इसके रिमाइंडर 2 हो सकते हैं, या फिर k या फिर p-k. k क्या है तुम्हारा, एनी प्राइम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 6k+-1 फॉर्म. तो अगर प्राइम नंबर तुम्हारा 6k-1 फॉर्म का है, 6k-1 फॉर्म का है तो रिमाइंडर ये होगा. अगर 6k+1 फॉर्म का है तो रिमाइंडर ये होगा. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. अब ये क्वेश्चन देखो
61 59 फैक्टोरियल, कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 के डिफरेंस के लिए रिमाइंडर क्या था? 1। 4 का डिफरेंस है। 4 के डिफरेंस के लिए रिमाइंडर के हो सकता है या फिर p माइनस के। तो अब ये देखो किस फॉर्म का है? 6 12 माइनस 1 इस फॉर्म का है। तो k माइनस 1 फॉर्म के लिए तुम्हारा रिमाइंडर k होता है ना, तो डेट इज 12। तो ये बिकॉज 6k माइनस 1 फॉर्म के लिए रिमाइंडर देखो k होता है, 6k माइनस 1 फॉर्म के लिए k होता है, तो k is 12, so that is the remainder here. Okay, so these were all the theorems. डेफिनेटली तुम्हें लगा होगा कि आई हैव टेकन दोज एग्जाम्पल्स जिस पे लाइक यूलर थ्योरम, जिस पे चाइनीज थ्योरम और जिस पे तुम्हारा विल्सन थ्योरम अप्लाई हो पाता है। सिर्फ आई हैव टेकन दोज क्वेश्चंस एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड, दैट इज राइट थिंग। बट you can take pick any book and start solving the question and understand कि कहाँ पर कैसे थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, try to apply on your own and you can solve any question using these theorems. There I have, like for this session I have taken particular examples and I have explained, but in the next part of the remainder I will be taking random questions and all the varieties of the question that can be asked, and I will be discussing those questions एंड यूजिंग ऑल दिस थ्योरम। ठीक है, तो वो बेसिकली लाइक तुम्हारा कंप्लीट सेशन होगा। उस सेशन में कोई थ्योरम वाइज मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, आई विल टेक टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी देयर पॉसिबली। ठीक है, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाए, और जहाँ पर लाइक ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी लग रहा है और यूलर रिमाइंडर थ्योरम भी लग रहा है और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी लग रहे हैं, है ना। लाइक जैसे बहुत सारे मेथड होंगे जो इसमें नहीं है, देयर इज नो थ्योरम, तो प्रैक्टिस से तुम सीखोगे। सो दैट थिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस। मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो द ग्रुप इज बाय लाइक कैटरीज ग्रुप दैट यू कैन लाइक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन and subscribe to the channel. Let's see you in the next session.